What does typical salary in consulting look like? Typically, you start out as an associate where you make 30 to 40 lakhs per annum, and then you move on to becoming a manager, team leader, where you would do. CAT percentile कितना था? मेरा CAT percentile था 99.8. मुझे 99.91 परसेंटाइल पे बैंगलोर का शॉर्टलिस्ट नहीं आया. At 3 AM I think कोई भी लाइब्रेरी में घुसेगा उसको रियलाइज नहीं होगा कि it's 3 AM because it is full. IIM अहमदाबाद वाले भी अंदर से जानते हैं रहते हैं कि भाई ये बंदा टैलेंटेड है. कुछ भी हो सकता था. लक बहुत बड़ा फैक्टर था. हमारे पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है बोलने का कि अब्बा नहीं मानेंगे. We choose it ourselves to run the rat race. थैंक यू अनिरुद्ध फॉर डूइंग दिस. जब भी कोई गेस्ट आता है ना, मैं यूजुअली इंट्रोडक्शन उनसे ही लेता हूँ, गेस्ट से लेता हूँ कि आप कर लो इंट्रोडक्शन. बट ये पॉडकास्ट स्पेशल है बिकॉज अनिरुद्ध इज़ माई बैचमेट फ्रॉम IIM अहमदाबाद. इनफैक्ट वी आर फ्रॉम द सेम सेक्शन एट IIM अहमदाबाद. इसलिए सब कुछ मुझे ऑलरेडी पता ही है. इज़ फ्रॉम IIT खड़गपुर. उसके बाद फ्रेशर, ही जॉइंड IIM अहमदाबाद, वॉज वन ऑफ द टॉपर्स एज वेल एट IIM अहमदाबाद, and joined McKinsey after that, and recently has left his job. And despite all these achievements, Anirudh was just telling me he feels like today he feels accomplished coming on this podcast. Definitely. Who would have thought कि I would be sitting on the podcast with Ananta Chhajar himself? यार मैं बहुत serious podcast करता हूँ. And I think this is the first podcast then where I can be like open with someone. And मैं ढूंढ रहा था यार कौन बैचमेट हो कि वो जॉब छोड़े. उसके बाद so that I can obviously have open conversation. जॉब में कोई है तो मैं detailed conversation नहीं कर सकता which will be useful for the audience. तो जॉब छोड़े उसके बाद same city में भी हो. So it's like finally stars have aligned and finally you are here. So thank you यार, thank you so much. Thank you for having me. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अनंता छाजर के साथ एक कोई पॉडकास्ट में होऊंगा. अरे यार सच में अब मुझे लगता है कि बड़ा पॉडकास्ट बनाना चाहिए. लाइक क्वेश्चंस ही पूछना चाहिए. समथिंग लाइक क्या IIT में भूत होते हैं. आई थिंक व्यूज भी ज़्यादा आएंगे उसमें. बट ठीक है यार, ऑडियंस को भी चाहिए काफ़ी सीरियस कॉन्वर्सेशंस अब. एंड वी हैव अ लॉट टू कवर हियर फॉर द ऑडियंस स्पेशली. ओके. Life to what is the life as a consultant? मतलब you worked at McKinsey as well, so definitely audience wants to hear about that. उसके बाद CAT preparation. क्या CAT percentile कितना था? Wrong question, Ananta off the go. मेरा CAT percentile था 99.8. 99.8 ठीक है. तो obviously CAT preparation कैसे होता है वो भी audience को जानना ही है. 99.8 and उसके बाद definitely life IIT में IIMs में life थोड़ा discuss करेंगे so that people get an idea about it. Okay. ठीक है. तो पहले एक ऐसे क्वेश्चन से शुरू करते हैं which audience really wants to know. Okay. Because you have worked at McKinsey as well, तो मैं MBBs का पूछूंगा, not typically just McKinsey, but MBBs में सैलरी कैसा रहता है? लाइक अगर डेजिग्नेशन वाइज एंड ईयर वाइज अगर सैलरी बता पाओ कि कैसा सैलरी रेंज है एटलीस्ट कैसा होता है? Right. So straight out of coming out of B school, I think 5 stages are important to know for any MBB consultant, right? You start out at some junior associate level. In 2 years, you get to an senior associate/associate level. And then in another 2 years, you will be an engagement manager, team leader, project leader sort of role. And then in another 2 years, you will be on associate partner. And in another 2 years, you are expected to be partner. So that's typically the 5 stages, right? However, the timelines may vary. In terms of salary, when you start out, I think these days they're offering a range of 25 to 35. And then once you move over on the senior associate level, the range moves from broadly 35 to 45. And at engagement manager level, I think there's a jump. You get something around 50 to 70 sort of range. And then, of course, it becomes very varying because a lot of components kick in once you become associate partner. So that is broadly the range in terms of salary. Okay, so associate partner, you can expect, I think, 1 CR plus भी हो सकता है. Like obviously variable is there. Definitely can go there. Okay, and typical career अगर trajectory देखे तो in 2-3 years, I think you will go from one level to the other. In case it's a normal in 2 years. In 2 years from one level to the other. Absolutely. So if you do well, you can get in 1.5 year. Yeah, okay, exactly. Got it. So something like 8-9 years में तो you can become a partner. Yes. And 8-9 years में definitely you can expect much more than a crore salary. Absolutely. I think key thing here is everybody measures salary in terms of CTC. Yeah. Right. However, these numbers, they are not CTC. These are the salaries that you would get. Now, a CTC for a consultant is actually very difficult to calculate because you sort of
stay in hotels, you travel around in flights, and all of this is not part of your salary. It's actually cost to company in some sense. Right. So all that you make, you save essentially. Right, now that you're talking about travel, बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल रहती है, लाइक ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट कंसल्टिंग में काफ़ी वर्क आवर्स रहता है एंड ट्रैवल स्पेशली बहुत ज़्यादा रहता है. कितने कंट्रीज घूमे थे 2-3 साल जो वर्क किया वैकेंसी में? I think straight out, first project I was going to South Africa, Oh, right? And उसके बाद I stayed in India for a couple of projects. Then I had a project in Sri Lanka. And even in India I was moving around. मतलब कभी project दिल्ली में, बॉम्बे में, बैंगलोर में, कोलकाता में. So all of these places I have had to stay around 4-5 months and then move out. And of course in between there were more offers to like take up a project in Dubai, Riyadh. I did not opt for them, but of course that would have been an additional plus. ओके, तो एक टिपिकल वीक अगर मैं बोलूँ लाइक कैसा रहता है टिपिकल? बिकॉज अगेन इंडिया में भी अगर होगा तो आई थिंक ट्रैवल तो उसमें भी रहेगा. इंडिया के प्रोजेक्ट्स में absolutely. You travel Monday you fly out to your client site Monday morning, and you are there. You are expected hopefully to be at office by 10, and then you do your week, and Friday you fly out back to wherever you want, like basically inside India. Okay, मतलब like home location भी या फिर कहीं भी इंडिया Yeah, में हो तो basically, yeah. Okay, and then Saturday Sunday typically usually free रहेगा अगर project work नहीं हो. Absolutely. And then Monday morning and Friday night basically you're traveling. 100%, 100%. Okay, and कैसा लग रहा था like after obviously यार Monday to Friday you are staying in a hotel. After a time were you feeling that नहीं यार अब तो घर में रहना है ज़्यादा, कुछ ऐसा feeling आ रहा था या फिर कुछ होमली फीलिंग थोड़ी चाहिए? होता ही है यार, मतलब क्या बोलते हैं, आई थिंक आफ्टर सम टाइम यू डू फील लाइक कि नहीं घर पे रहना है थोड़े दिन. बट आई थिंक it's about how passionate you are towards work, right? Sometimes you're so involved in work, you don't really feel like even traveling back. You say कि नहीं, I'll stay Saturday Sunday मैं होटल में रहता हूँ, चिल करता हूँ. Right, काफी लोग बोलते हैं like travel पहले तो 2-3 महीना तो like लगता है अरे यार 5-star hotels and everything. उसके बाद यार I don't want to stay there. First 6 to 8 months everybody feels like I'm going to fly to like my friend, I'm going to fly home. नहीं, इस हफ्ते मैं उधर fly करता हूँ और उस हफ्ते मैं उधर fly करूँगा. And then you see slowly after like 1.5-2 years सबका वो travel करने की इच्छा कम होते जाती है. And project भी चाहिए कि यार इंडिया में ही हो जाए, home location में हो. Exactly. नहीं जाना और नहीं जाना, हमें home location वाला project चाहिए. Right. And मान लो यार consulting किया इतना साल, अगर if you go back to campus placements for example, तो will you choose consulting again? If I go back to campus placements again, yeah, I would have already been done with my consulting. नहीं, मान लो experience नहीं है. अच्छा, मतलब अब पता चल गया exactly consulting क्या है. हाँ. No, so consulting has been a very enjoyable experience. But the fact that I've already had this experience, I would definitely want to do something new, something different than what I've chosen to do. However, if it was like a redo, like if life went rewind, then maybe I would still choose consulting. Being at that juncture, जहाँ पर मतलब हम सबको कैंपस में इतना फोमो था अबाउट कंसल्टिंग एंड इट वाज McKinsey, मतलब सो ऑफ कोर्स मतलब I don't think there was anything anyone could have said to me at that point of time to put me away from consulting. Nice. So for me, if I go back to campus placements, I would have definitely taken a very different decision. Okay. For me, I would have chosen probably an early stage startup. जहाँ पर एटलीस्ट सीड राउंड हो गया है सो दैट दे कैन पे मी एटलीस्ट 15 लाख का फिक्स सैलरी, सो दैट आई डोंट फील लाइक बहुत ज़्यादा पे कट हो गया. बट आई वुड चूज दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड ESOPs में डिमांड करता कि 30 to 50 लाख का ESOPs दे दें. बिकॉज फर्स्ट तो वेल्थ जनरेशन मुझे समझ में आया कि यू कैन मेक थ्रू ESOPs या फिर अ शेयर इन द कंपनी. एब्सोल्युटली. सो दैट इज वन थिंग वेल्थ जनरेशन के लिए, एंड थोड़े ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हुए कि क्या करना है एग्जैक्टली लाइफ में. तो स्टार्टअप्स में जो लर्निंग होता मुझे अब लगता है शायद वो मेरे लिए बेटर होता. सो प्रॉब्ली मैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप लेता. 100% यार, आई थिंक totally agree with you over there that these early stage startups, especially the way things are changing in our country, they are like the prime opportunity in fact to get into this, and companies are valuing so much as to people who have worked in these early stage startups and help them grow 2x 3x that if I had better knowledge at that point of time, probably would have gone to some growing startup. Right. And एक बात बताना, because you have worked with foreign clients as well, obviously foreign teammates भी रहेंगे. एक project जब जाते हो तो obviously काफ़ी consultants foreign से भी रहते हैं. Do they know about IIMs, IIM Ahmedabad, या उनको पता है क्या, या value करते हैं क्या वो? Good question. I think in my experience, they don't know about IIMs so much.
However, in Sri Lanka, there were a very diverse set of people, even from Europe, etc. They, however, mistook IIM as IIT, and they would sort of correct and say, "No, are you talking about IIT?" I was like, "No, it's IIM." So I think very strange, but probably IIT was recognized more than राइट IIM in that case. इसका मुझे रीजन लगता है कि बिकॉज इंडिया को इंजीनियरिंग टैलेंट जैसा देखा जाता है, इंजीनियरिंग Yeah. टैलेंट्स हायर किए जाते हैं, Yeah. तो आईआईटी तो फेमस है उसके लिए. बट Absolutely. इंडिया से मैनेजमेंट टैलेंट, पीपल डोंट नीड मैनेजमेंट टैलेंट फ्रॉम इंडिया. तो इंडिया में तो ऑब्वियसली आईएम्स आर वैल्यूड. इंडिया में अगर कोई हार्वर्ड मतलब ग्रेजुएट भी आए, आईएम ग्रेजुएट भी रहे, उसको टिपिकल सेम सैलरी मिलेगा बिकॉज दैट इज द True. हाईएस्ट रेंज. True. तो इंडिया से आईएम वाले को नहीं इतना रिकॉग्नाइज नहीं होता. अगर बाहर देखूं, मेरे एक्सपीरियंस में भी सेम रहा है. लाइक मोस्ट ऑफ माई फॉरेन टीममेट्स या फॉरेन क्लाइंट्स, दे डोंट नो अबाउट IIM अहमदाबाद. इनफैक्ट मेरे मैनेजर ने बोला था कि यार यू कैन वर्क हियर फॉर 2-3 years, after that you can do an MBA as well later. And he knows I'm from IIM Ahmedabad. I was like, you can do a Harvard or something as well. I was like, okay यार आपको नहीं पता है, ठीक है. but ये similar experience. They don't know what is IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, Calcutta, कुछ भी नहीं पता. But हाँ, ये उनको टिपिकल सैलरी रेंजेस पता होती है कि कितना है इसका, कितना चार्ज कर रहे हैं. तो दैट काइंड ऑफ गिव्स देम एन आइडिया बिकॉज ऑब्वियस सैलरी तो डिसेंट रहती है एंड प्रोजेक्ट में जो बिलिंग होता है वो भी डिसेंट रहता है. 100%. तो आई थिंक दैट गिव्स देम द वैल्यू कि हाँ इस बंदे में कुछ वैल्यू तो है, Absolutely. बिकॉज चार्ज इतना कर रहा है तो यार कुछ तो होगा. 100%. And in fact, I think within couple of conversations, they realize मतलब कि you know that it's not just any other conversation they would want to have. ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन में आते हैं. बेसिकली अगर किसी को नॉन टारगेट स्कूल से जाना है, मान लो एमबीबी में या फिर किसी भी एक टॉप कंसल्टिंग फर्म में, तो वो कैसे जा सकता है? एंड ऑडियंस के लिए ये बता देता हूँ नॉन टारगेट स्कूल क्या होता है. बेसिकली जो टॉप टियर फर्म्स होते हैं, मे बी इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक्चुअली, एमबीए के बाद प्रॉब्ली द आईएम्स, एफएमएस, आईएसबी हो गया, या फिर इंजीनियरिंग के बाद आईआईटीज, एसआरसीसीज जो अंडर ग्रेजुएशन के बाद होते हैं. तो दोस्त टियर वन ना बेसिकली टारगेट स्कूल, जो कंसल्टिंग फर्म जानते हैं कि अच्छा ये बच्चा टारगेट स्कूल से आया, सो वी माइट हैव अ लुक एट द सीवी. बट ऐसे काफ़ी सारे other than that non-target schools होते हैं which probably fall in the tier 2, tier 3 category. So उसके लिए क्वेश्चन है कि अगर कोई non-target school से जाना चाहते हैं MBBs, तो वो कैसे जा सकते हैं? I think there are basically two ways you can do that. First way would be कि you join into a boutique consulting and then you work there for 2-3 years and then you try to make your move into MBBs. The second way would be that you spend good 4 years in expertising yourself in a particular function domain. For example, you do digital transformation, supply chain expert, operations expert, and then you sort of apply as an expert into these consulting firms. They hire a lot of these industry experts, and then you can get into these firms. You might be a little off on the trajectory compared to someone who directly gets in, but you will definitely be there. ओके, मतलब आई थिंक 3-4 years मतलब लेट हो सकते हैं ट्रेजेक्टरी, बट अल्टीमेटली फर्म में जाने के बाद भी आई थिंक यू सेड अर्ली प्रमोशंस भी होते हैं. Absolutely. So if you can मतलब मेक इट आउट. Absolutely, and you will get it. ओके, एंड पार्टनर लेवल के बाद एक्चुअली पार्टनर लेवल के बाद आई थिंक वो सीनियर पार्टनर जो भी होते हैं वो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ बिजनेस यू ब्रिंग इन एज वेल, Absolutely. राइट? तो ऐसा फिक्स ट्रेजेक्टरी नहीं है कि इतने साल बाद ही आप सीनियर पार्टनर और समथिंग बनोगे. Absolutely. So I think if you do work there, maybe 3-4 years late start कर रहे हो, but वो करके sell करके ज़्यादा work करके I think probably you can still be at the same level. 100%. You get an equal opportunity to become one of them. Okay, and ये बताओ यार now about you कि क्यों छोड़ा कंसल्टिंग, क्यों छोड़ा, क्या रीज़न था, क्या नेक्स्ट प्लान है? So the idea was even out of B school, my thinking was always that I wanted to do something of my own, wanted to open a startup. And I think that's the same idea I carried with me into consulting. To some of my mentors, in fact, upfront I told them that I hope to become an entrepreneur someday. So I think that's what it built to. And when I thought that it was maybe time enough where I could sort of leave and explore for some time to see what I can start, that's when I took a call to sort of leave consulting. Okay, and IIM tag help करती है business में? So I've been working with a lot of government officials now, and outstart, of course, a lot of these officers, they don't know you, they don't want to listen to you, right? However, once you mention that you've graduated from IIT, IIM, then it opens this small window of like a 5-minute attention span where they stop and they're like, okay, sure, go ahead, what do you have, right? And I think
that's the 5 minute window you get because of this tag. But of course, after that, it completely depends on what your value is, what your pitch is, how you deliver, what you're going to deliver. But I think the only thing I can say makes a difference is if they were not ready to hear, they would give you this 5 minute grace. Got it. And I think अभी इन्वेस्टमेंट्स रेज करने के लिए तो नहीं गए हो गया, VC क्या ये सब अप्रोच तो नहीं किया? No, I haven't. इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ बिजनेस. Yes. ठीक है, बिकॉज VCs को भी अप्रोच करते हैं, आई थिंक काफी लोग बोलते हैं कि दैट ऑल्सो हेल्प्स. True. एक बार एटलीस्ट वो प्रोफाइल रहता है तो दे आर मोर ईगर टू एटलीस्ट सी द पिच डेक before 100%. like they make a final decision. So वो entry easy हो जाती है, but ultimately like you said value deliver करना पड़ेगा. अगर value नहीं deliver किया तो no one is going to invest or even listen to you. I am hoping so कि मतलब they consider me when I go to them for funding. हाँ, क्योंकि सुना था यार, किशोर बियानी का भी एक मैं देख रहा था. So even he was like yes, उनकी भी एक प्रोफाइल रहती है जो VCs भी बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी ऑब्वियसली जस्टिफाई करना अपना डिसीजन. तो अगर एक प्रोफाइल का वो रहे ना कि अच्छा ये प्रोफाइल था, हमने तो सही बंदे पे लगाया था, वो नहीं कर पाया, तो वो एक उनको भी सेफ्टी नेट मिल जाता है कि यार हमने तो सही बंदे पे लगाया था, वो कर नहीं पा रहे तो हम क्या करें. True. तो आई थिंक वो भी एक फैक्ट बन जाते हैं. बट जब छोड़ा था जॉब तब ये सोचा था कि यार बिकॉज IIM है इसलिए शायद जॉब सिक्योरिटी तो है, मे बी बिजनेस ठीक है 3-4 years दिया बिजनेस में, इट डजंट वर्क आउट, आई स्टिल हैव दैट जॉब सिक्योरिटी. क्या वो हेल्प करती है? I think big factor because of course it's not easy to leave a good paying job in McKinsey, and of course business is always very uncertain. You sort of trying new things, you're doing a startup, it's not easy, things are not easy right now. But the only thing I can say as a fallback is that if it doesn't work out, if nothing works out in 2-3 years, I can still go out in the industry and get some job, right? And I think that job security is a good benefit. एंड यार अब दैट यू हैव लेफ्ट योर जॉब, लगता है कि जब कैंपस में थे थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेस थे हम लोग कैंपस प्लेसमेंट्स के साथ कि डे 1 से ही यार ये प्लेसमेंट, ये कंपनी, ये सीनियर है, उससे बात करना पड़ेगा, इस फर्म में ही जाना है. लगता है अब इतने लाइक आफ्टर 2-3 years लगता है कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ऑब्सेशन था कैंपस प्लेसमेंट्स के साथ. Oh my God, extremely. I think from the day one, all anyone could think about is placement. मतलब उस टाइम पे सही में मतलब आई थिंक कितना 1-2 महीना इनटू कैंपस हम लोग CV बना रहे थे फॉर इंटर्नशिप्स, है ना. ऐसा लग रहा था कि मतलब कि ऑल वी आर आवर फुल अटेंशन, मतलब कि यही था. हम वी आर ट्राइंग, जैसे तुमने बोला, वी आर ट्राइंग टू चेज डाउन सीनियर्स, कौन सा सीनियर क्या कर रहा है. एंड मतलब टुडे इट सीम्स लाइक सच अ रिडंडेंट एक्सरसाइज. आई मीन मोस्टली इन टर्म्स ऑफ कि हम इतना फिक्सेटेड थे कि प्लेसमेंट क्या होगा, कौन सी कंपनी में, कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, VC. However, मतलब we never pause to really think कि what do I really want to do in terms of where can I make good difference. And I think all of us have heard this in some form कि हाँ अरे करना तो वो चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगता है एक्सेट्रा. बट जब आप उस जगह पे होते हो तब वो चीज़ें दिमाग में नहीं आती. देन वी आर ऑल रनिंग द रेस. एग्जैक्टली. एंड मुझे याद है जब एक्चुअली कोविड पीरियड था हम लोगों के टाइम, सेकेंड ईयर में, जब फाइनल प्लेसमेंट के पहले था. एंड जब मैं घर में था तब आई वाज काइंड ऑफ मतलब मेड अप माई माइंड कि मुझे ये फर्म्स टारगेट करने. कुछ अर्ली स्टेज स्टार्टअप मैंने शॉर्टलिस्ट भी करके रखे थे, एंड कुछ सोशल सेक्टर में जो वर्क करे उनको भी शॉर्टलिस्ट करके रखा था. बट आई थिंक दिसंबर में वी वेंट बैक कैंपस में सब कोई, एंड वो जनवरी-फरवरी से प्लेसमेंट था. एंड दिसंबर में जाने के बाद अगेन आई चेंज कि नहीं मुझे तो डे 1 प्लेसमेंट ही चाहिए, डे 3 तक मैं कैसे वेट कर सकता हूँ. इट कैन नॉट हैपन दैट, मतलब वो तो नॉर्म है, डे 1 में ही प्लेसमेंट उठाना है. एंड लाइक क्यों मतलब वो डिसीजंस लिए जब सडनली वो कैंपस में जाते ही इन्वायरमेंट था या क्या था, आई डोंट नो, बट समहाउ वो चेंज हो गया, माइंड बिल्कुल चेंज हो गया. बट आई स्टिल थिंक, मुझे भी लगता है लाइक समहाउ बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड रहते हैं प्लेसमेंट में. मुझे याद है काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कंप्लीट एक्सेल शीट बना के रखा था, अच्छा ये सीनियर यहाँ पर जाएगा, ये सीनियर वहाँ पर है, एंड आई हैव टू कॉन्टैक्ट दिस पर्टिकुलर सीनियर बिकॉज इस कंपनी में ही जाना है. एंड दे आर लाइक एटलीस्ट 50-60 गुड फर्म्स कमिंग टू आवर कैंपस. उसमें किसी में भी हो जाता, आई वाज लाइक योर लाइफ वुड बी सॉर्टेड 50-60 फर्म्स में, एंड स्टिल यू आर फिक्सेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर 2-3 फर्म्स. उसके लिए जितनी भी लर्निंग है, इवन क्लासरूम की लर्निंग, प्रोजेक्ट्स जो कर सकते थे अच्छे से, शायद उससे ध्यान हटा के प्लेसमेंट्स में ध्यान लगा दिया कि अच्छा CV कराना है, एक ही CV को 15 सीनियर 20 सीनियर से रिव्यू करवाना. So यार काफी कुछ था यार. आई थिंक हम लोग के टाइम पे मतलब आई थिंक अभी भी पीपल जनरली मेक लाइक 20 वर्जन्स ऑफ CVs, 25th वर्जन बनता है वो, बिकॉज इट्स बीइंग एडिटेड, री-एडिटेड. इतना टाइम उस एक CV को मतलब एडिट री-एडिट करके एग्जैक्टली फॉर वो फर्म के लिए ये वाली CV जाएगी, वो फर्म के लिए शायद ये वाली, इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ.
इतना वी ओवर इंजीनियर ये सब चीज़ों को, Right. इतना ज़्यादा टाइम भी लगाते हैं. And like you said कि if you would have gotten these jobs at any of these 50-60 firms, life would not have been any different right now. मतलब Exactly. Now that I like obviously we talk to our batchmates, मतलब लगता है कि सभी like obviously एक पॉइंट पे obviously सबको ही सफर कर रहे हैं and at the same time everyone has like an equal life only. And within a matter of 6 months, people changed. मतलब Exactly. people moved from firm to firm and they went to different places. Exactly, and even from dream firms, मतलब जो dream firm था उनके लिए उसमें से 3 month में switch कर लिए और उसके लिए उस dream firm के लिए कितना effort डाला होगा यार कैंपस में. मैं सोचता हूँ कि अगर वो 1 hour ज़्यादा कैंटीन में बैठ जाते हैं, फ्रेंड से कन्वर्सेशन कर लेते हैं या प्रोफेसर से कन्वर्सेशन कर लेते हैं या फिर वो प्रोजेक्ट में जो भी प्रोजेक्ट था उसमें थोड़ा और ज़्यादा रिसर्च करते हैं, प्रॉब्ली थिंग्स माइट बी डिफरेंट. बट आई थिंक ये हाइंडसाइट में पता चलता है. व्हेन वी वर देयर ऑन द कैंपस, I don't think it was possible for us to realize or for anyone else to realize. Like I as said, well. there was no podcast on this earth that could have told me don't get into this rat race, right? This is only a race that you will realize is not worth it. There was nobody who could tell me that. राइट. एंड मुझे लगता है सच में अगर कोई भी बी स्कूल में जाने वाला है अभी ऑडियंस में से, आई थिंक दे शुड वैल्यू दिस, मतलब रिलेशनशिप ज़्यादा, फ्रेंड्स के साथ 100%. टाइम ज़्यादा स्पेंड करना, बिकॉज दोज आर द कनेक्शन दैट विल मैटर. नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट भी कर दिया जाता है मुझे लगता है, काइंड ऑफ कि आप इससे एक बार जाके बात कर लो तो वो नेटवर्किंग नहीं होता है. नेटवर्क इज बेसिकली योर बैचमेट, योर 400 पीपल देयर ऑन कैंपस, यू नो देम लाइक वेरी क्लोजली, आपके डॉर्ममेट्स, आपके सेक्शन मेट्स स्पेशली, एंड उनसे वो जो नेटवर्क बनेगा ना, वो जो कमराडरी रहेगी, आई थिंक that is much better than like just talking to one person, one senior for an hour or so. बिल्कुल बिल्कुल. मैं इस पॉडकास्ट में नहीं होता अगर मैं अनंता छाजर का दोस्त नहीं होता तो. अरे नहीं हो तो जाता है आई थिंक, लेकिन बिकॉज ऑफ योर अचीवमेंट्स ऑब्वियसली. बट हाँ, लेकिन मैंने जैसे बोला यार, मुझे ऐसे लोगों को बुलाना जो ऑब्वियसली बैचमेट सो क्लोज टू मी सो दैट आई कैन हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन. बट उनको जॉब भी तो छोड़ना पड़ेगा. अब मैं कैसे लोगों से उनकी कंपनी के बारे में कुछ पूछूं? Obviously, if there's something negative, I have to ask you. No one would be convenient to say it out loud on a podcast, and True. that is obviously required for the audience so that they get this clear picture about what's actually happening in the industry. So उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि people who have come out of the firm. तो यहाँ एक्चुअली मैं स्टोरी बताता हूँ. क्या हुआ था कैंपस प्लेसमेंट में. मैं जब फाइनल प्लेसमेंट बैठा था, एक बुटीक कंसल्टिंग फर्म है, उसने कॉल किया था कि मुझे टॉप पे रखो प्लेसमेंट में, जैसे ऑब्वियसली सब फर्म्स करते हैं, तो टॉप पे रखना हमें. एंड एक IIM अहमदाबाद का एलुमनाई था, तो उसने बोला कि यार मतलब इसको रख लो, मतलब ज़्यादा सीनियर भी नहीं था, इसको रख लो, बहुत अच्छी कंपनी है, बुटीक है, तो ग्रोथ भी ज़्यादा जल्दी हो रहा है अभी, सो यू विल रीच दैट लेवल मतलब मच फास्टर बिकॉज स्मॉल फर्म है थोड़ी, एंड काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहेगा. एंड काइंड ऑफ कन्विंस कर दिया था कि यार इसको तो ऊपर रखना पड़ेगा कंपेयर टू लाइक अदर फर्म्स. तो उसके बाद क्या किया मैंने, एक और सीनियर था जिसने वो कंपनी लीव की थी एंड उसको मैं जानता भी था, तो मैंने कॉल किया उसको एंड आई आस्क्ड हिम दैट कैसा है फर्म, क्या जाना चाहिए. एंड ही वाज लाइक, भाई इस फर्म को लास्ट में भी अगर हो सके तो मत रखना, प्रायोरिटी से हटा देना ऑर्डर से. एंड इज लाइक सो मच लाइक सेइंग अबाउट दैट पर्टिकुलर फर्म, ये ऐसा होता है, ये ऐसा करता है, ये बॉस ऐसा है, इट वाज सो टॉक्सिक. एंड द सेम पर्सन, मतलब वो एलुमनाई था, एंड बिकॉज ही वाज इन द कंपनी ही हैड अ वेरी डिफरेंट वर्जन ऑफ पिचिंग मी दिस पर्टिकुलर कंपनी, एंड जिसने जॉब छोड़ दिया था, ही एक्चुअली शोड मी द रियल पिक्चर. So that's also like very True. important. I think somebody who leaves the job will give you the whole side of the full story rather than just the bright side, greener side of the story. In fact, a very similar incident probably कि one of the consulting firms का buddy, when we were in campus and I was shortlisted, he was my buddy. And it so happened that I became his buddy when he was trying to get into the consulting firm, right? Oh. So it was like a complete, we were still quote unquote buddies, but there was a complete role reversal and we were having a good laugh about the real situation inside the firm. नाइस यार. सो बडीज, अगर लोग ऑब्वियसली ऑडियंस को नहीं पता, बेसिकली कंसल्टिंग फर्म जब हायर करती है तो वो फाइनल इंटरव्यू के पहले एक बडी असाइन कर देती है, हु इज लाइक प्रॉब्ली 2-3 years सीनियर टू यू. एंड वो बडी आपको केस इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रिपेयर करवा देता है, आपसे थोड़ा कॉन्वर्सेशंस कर सकता है फर्म में, सो यू कैन हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन विद दैट बडी. यूजली बोला जाता है लाइक नॉन एवेल्युएटेड, एवेल्युएटेड दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो आप बडी से पूछ सकते हो, बट दैट्स द आइडिया बिहाइंड एवरी कंसल्टिंग फर्म पुटिंग अ बडी बिहाइंड द प्रोसेस. ठीक है यार, MBA का बात हुआ, कैंपस का बात हुआ, अब थोड़ा कैट प्रिपरेशन का बात करते हैं, बिकॉज काफ़ी ऑडियंस है जो MBA करना चाहती है, कैट में अपियर भी होना चाहती है, प्रॉब्ली कैट 24 या 25 एस्पिरेंट्स हैं. सो उनके लिए परसेंटाइल क्या था कैट में, आई थिंक वी डिस्कस 99.8 परसेंटाइल, एंड सब प्रिपेयर किया था IIT में while you were there studying at IIT. Right.
तो बताओ यार पहले कि मतलब IIT में रहते हुए कैंपस में ऑब्वियसली यू वेर इन द हॉस्टल, तो कैसे प्रिपरेशन करते थे वहाँ पर इन योर हॉस्टल? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन तो मेरी काफ़ी ख़राब थी एंड आई वॉज एक्चुअली इन्वॉल्व इन अ कपल ऑफ थिंग्स. मैं स्विमिंग भी कर रहा था, कॉलेज का सेमेस्टर एग्ज़ाम भी था, प्लेसमेंट्स चल रहे थे. प्लेसमेंट के लिए दस लाइक बैक टू बैक टेस्ट जहाँ पर कोडिंग करना पड़ता है. तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर हैपनिंग एंड अमिड्स दैट आई वॉज बेसिकली कैरिंग दिस बुक्स जिसमें मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते थे. एंड वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन, मैं ऐसे बगल में एक नोटबुक रखता था जहाँ कुछ नोट्स ले लिए, और इस तरफ में मैं कैट की बुक रखता था जिसमें सॉल्व कर लिया. राइट, दैट इज हाउ आई मोस्टली प्रिपेयर्ड. बट आई थिंक द मेन क्रक्स, इफ यू आस्क on how preparation really happened, was through giving mock exams. I think I was repeatedly giving mock exams, and I tell this to everyone who asks me कि मतलब मैं कैसे prepare करूँ CAT के लिए, कि I think the golden formula is you give mock, and then उस mock के साथ मैं बैठता था कि मैंने कहाँ गड़बड़ किया है, कौन से सेक्शन में गड़बड़ किया है. फिर उसमें जैसे मैंने बोला क्लास के बीच में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया to figure out how to get those questions right, and then again give a mock exam. एग्जैक्टली एंड मैं भी बोलता हूँ लोगों को लाइक मॉक एग्जाम मतलब कितना भी प्रिपरेशन कर लो, अगर मॉक नहीं दिया देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू. एंड स्पेशली मुझे लगता है द रीजन दैट इट्स आल्सो वर्कड आउट फॉर यू, मैं लोगों को बोलता हूँ कि कैट एक एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन, उसके लिए ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल जे यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्रैक विद दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन. 2 years डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए, एंड कैट में 3 months 2 months के प्रिपरेशन में भी कोई क्रैक कर सकता है. एंड स्पेशली समवन लाइक from you, like obviously you have studied for JEE, maths बहुत strong था, so for you as well mocks दे दो तो हो जाएगा. and kind of बस वो 1-2-3 महीने का preparation नहीं है तुम्हारे लिए, it is like 10 years पहले भी तुमने obviously स्कूल में भी मेहनत किया था मैथ्स में, वो सब कुछ like accumulate होता है, because ultimately it's an aptitude examination. unlike कि टॉपिक भी बहुत प्रिपरेशन चाहिए. टॉपिक्स तो कवर किए थे आई थिंक क्लास 10 में भी किया होगा, JEE में भी मैथ्स किया था. सो आई थिंक वो बस वो फर्निशिंग, वो लास्ट का वो ना फिनिशिंग टचेस चाहिए होता है. आई थिंक मॉक्स वो दे देते हैं. बट हाँ, काफ़ी लोग होते हैं जिन्होंने शायद वो एफर्ट नहीं डाला था अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में मैथ्स लेके. प्रॉब्ली उनके लिए थोड़ा प्रिपरेशन उनको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है इन द इनिशियल स्टेजेस. उसके बाद वो उस लेवल पे आ जाते हैं कि अब मॉक्स के थ्रू वो कन्वर्ट कर पाएंगे. बट कोचिंग नहीं लिया था इन योर केस? नहीं, कोचिंग नहीं लिया था मैंने. ऑफ कोर्स आई साइंड अप फॉर दिस टेस्ट सीरीज, राइट? एंड IIT में काफ़ी फ्रेंड्स होंगे लाइक जो प्रिपेयर साथ में कर रहे होंगे. नहीं, एक्चुअली देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ मतलब प्रिपरेशन बज गोइंग अराउंड. मतलब आई न्यू कि कपल ऑफ पीपल मोर वर डूइंग इट, बट इट वाज इतना ब्रोकन एंड द प्रिपरेशन वाजंट लाइक तुमने जैसे बोला क्लियरली कि JEE में ऑफ कोर्स आई हैड अ फुल ग्रुप एंड वी वर लाइक सिटिंग टुगेदर, हर एक देते थे, वी वुड डिस्कस कि किसका स्कोर कितना आया. ऑन द कॉन्ट्ररी, लाइक यू सेड कि कैट इज मोर एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम, सो जिसको जब टाइम मिलता है दे वुड डू इट. एंड ऑफ कोर्स यू हैव सो मेनी पीयर्स, तो यू वुड डिस्कस कि अरे मतलब ये मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं ये सब क्वेश्चन में यार बहुत टाइम लग जा रहा है मेरे को. तो देन दैट सॉर्ट ऑफ डिस्कशन वुड हैपन. राइट, क्योंकि एक था हम लोगों का बैचमेट, आई थिंक वो उसने बोला था कि वो भी IIT से था, डिफरेंट IIT. तो लाइक लास्ट 14-15 डेज में ही प्रिपरेशन किया था उसने. एंड इट वाज लाइक उसके बैचमेट्स बोलते हैं बेसिकली कि भाई वो देने भी नहीं जाने वाला था कैट एग्जाम, बट हमने बोला कि एक एग्जाम तो दे दे, एंड आ गया, IIM अहमदाबाद आ गया आफ्टर कन्वर्टिंग इट. सो ऐसे स्टोरीज काफी सारे होते हैं. 100% इवन विद अस, मतलब कि लाइक आई सेड कि एवरीबॉडी, ऑल ऑफ अस वर प्रिपेयरिंग हियर एंड देयर, लाइक बिकॉज एवरीबॉडी वाज नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस. एंड लाइक यू सेड वेरी सिमिलरली, आई हैड अ फ्रेंड and he also very last moment was like he decided कि ठीक है एप्लीकेशन भर तो दिया था, ओके मतलब दे देते हैं. इवन 1 day before he was discussing कि क्योंकि हमारा कैट एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम्स के बीच में पड़ा, इट्स लाइक फ्राइडे देयर इज अ सेमेस्टर एग्जाम, मंडे देयर इज अ सेमेस्टर एग्जाम, संडे को कैट एग्जाम है, राइट? तो he was like thinking कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मतलब in that stage, and then he eventually went and he did well, right? And I think 100% rightly put, it's an aptitude test, not a knowledge test. एग्जैक्टली. एंड वही काफ़ी लोगों को बोलता हूँ, काफ़ी लोग, मैं जब बनाता हूँ वीडियोस भी कि यार 3 month में आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार 3 month में हो सकता है कि 100 days में हो सकता है कि नहीं. सो ऑब्वियसली सबका शायद नहीं हो सकता, बट आपके बेसिक्स थोड़े भी क्लियर हैं, आप मॉक्स देने जाओगे, हो सकता है. एंड इवन फॉर पीपल हु वांट टू कन्वर्ट इट इन 100 days एंड बेसिक्स इतना क्लियर नहीं है, प्रॉब्ली 50 days एफर्ट डाल सकते हैं इन क्लियरिंग दोज बेसिक्स. उसके बाद नेक्स्ट 50 days में मॉक्स एंड आई थिंक क्रैक हो सकता है ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. Absolutely, I 100% agree with this. एंड इंडिविजुअल सेक्शन स्ट्रैटेजी में जाते हैं
कि सो दैट मतलब ऑडियंस को भी थोड़ा हेल्प हो जाए. ऑब्वियसली मतलब यू डिड नॉट डू दैट काइंड ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन. तो मेरा अगर केस बताऊँ, मैंने बहुत डेडिकेटेड प्रिपरेशन किया था. लाइक फर्स्ट एक्चुअली 2 बार दिया था मैंने कैट. फर्स्ट टाइम मेरा 99.21 परसेंटाइल था, जिसपे हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है. सो even on 99.8, sorry I'm interrupting, but 99.8 पे I was extremely disappointed and percentile आने के बाद मुझे लगा कि ABC से shortlist तो नहीं आएगा. And some of my friends were also kind of convinced कि हाँ शायद मुश्किल है shortlist आना. So it was a very touch and go scenario जहाँ पर मतलब I was very excited to see कि मुझे shortlist आ गई. एंड तुझे आ गया because your academics were good. मुझे हाँ. 99.91 परसेंटाइल पे बैंगलोर का शॉर्टलिस्ट नहीं आया. Oh my because God. वन ऑफ द कंपोनेंट इतना वो सही नहीं था. एंड प्रॉब्ली आज अगर होता तो, क्योंकि अभी क्राइटेरिया चेंज कर दिया बैंगलोर ने. Okay. तो पहले जब जो क्राइटेरिया था वर्क एक्सपीरियंस को ज्यादा वो फोकस डालते थे, ग्रेजुएशन स्कोर पे ज्यादा फोकस डालते थे. मुझे एक्चुअली कॉल नहीं आया 99.9 पे. एंड अगर एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होता ना, आई वुड हैव, इफ मुझे 99.8 आता, मुझे अहमदाबाद का कॉल नहीं आता. Wow. कैलकाटा आता, मुझे अहमदाबाद नहीं आता. सो प्रॉब्ली आई वाज लास्ट में किसी तरह मैं अहमदाबाद का शॉर्टलिस्ट में आ पाया हूँ, जस्ट बिकॉज वो 99.9 क्रॉस कर पाया. I think I thanked my 15-year-old self कि thank you for scoring well in your 10th board. सही में 10-12 मैंने अच्छा किया था, बट ग्रेजुएशन में आई वाज लाइक हटाओ यार, ग्रेजुएशन मुझे MBA करना है. तब पता नहीं था यार कि इतना काम आएगा वो स्कोर्स. True. सो डेफिनेटली दैट वाज अ थिंग. बट जो मैं बोल रहा था 99.2 स्कोर किया था, उसके बाद आई वाज लाइक भाई और एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे डालूं. 99.2 से 99. उससे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ टू गो फ्रॉम 99.2 टू 99.9. तो उस ईयर बहुत मॉक्स दिए, मतलब एटलीस्ट 35 ऐसे 40 मॉक्स दे दिए होंगे, बिकॉज उस साल बस मॉक्स दिया. ऑब्वियसली आई वाज वर्किंग एज वेल, तो बस वीकेंड्स में दे पाता था. तो काफ़ी डेडिकेटेड प्रिपरेशन किया था. एंड ऑन द अदर हैंड यू डिड नॉट डू दैट काइंड ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन बिकॉज ऑब्वियसली यू हैड मल्टीपल थिंग्स टू जगल विद. तो इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज में जाते हैं. वर्बल से स्टार्ट करिएगा. अच्छा, पहले स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा था? Naturally quant होगा. So, हम लोग दोनों का एक्चुअली कॉन्वर्सेशन सेम हो जाएगा मैं जो टिप्स देता हूँ. बट ठीक है, इंडिविजुअल सेक्शन ज्यादा. वीकेस्ट वर्बल होगा आई गेस. Yes. वर्बल से शुरू करते हैं. तो आई थिंक वर्बल में द स्ट्रैटेजी आई थिंक वाज टू firstly to improve my reading speed because it was going to be, I don't remember now, but it was going to be 5-6 passages. That was going to be the major section. Yeah. जिसके बाद में you would have, I think, 5-6 questions that would be outside of the passage, which would be something. It had different patterns, jumble words थे, ऐसा था. Now the main target was how do I read quickly in one read. I should be able to then answer questions quickly. So I think how I strategized this was that I would sort of read through in one read. I would want to grasp what is inside the passage, what information lies in which part of the paragraph, so that as soon as I see the question, I can immediately refer once and immediately answer. I should not have to read the passage again as to where it is. Right. And मैं अभी like obviously cat बच्चे के लिए tips देता हूँ बच्चों के लिए, तो उसको basically जो what exactly you are saying उसको paraphrasing like बोलते हैं exactly. Yes. Because उनको terms मतलब strategy same है, just that it's the term paraphrasing. उसका like every paragraph का एक summary बना लिया, kind of just one line summary कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर है. उसके बाद whenever you refer to the question, अगर याद भी नहीं exactly क्या था, but you can just go back to that particular paragraph. 100%. And that's a huge time save. मतलब people may not realize it, but if you were to sort of not know कि कौन से paragraph में क्या exactly लिखा हुआ था mostly, then you would have to read the question and then again search एक paragraph में कि कहाँ है. And उतने में तो मतलब कैट एग्जाम खत्म हो जाता है. मुझे लगता है like ultimately सब कोई कन्वर्ट कर जाते हैं सेम टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी में, मोस्टली टॉपर्स आई थिंक. एंड यहाँ पर आई थिंक पहले जब मैं स्टार्ट किया था मैंने ये सेम स्ट्रैटेजी मैं लिखता था, लाइक प्रॉपर्ली लिख लेता नोटबुक में. अच्छा फर्स्ट पैराग्राफ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, सेकंड पैराग्राफ दिस व्हाट इज हैपनिंग. थोड़ा मतलब ऑब्वियसली आफ्टर 10-15 अटेम्प्ट्स ऑफ मॉक्स उसके बाद वो इम्प्रूव हुआ एंड उसके बाद माइंड में रह जाता था कि अच्छा फर्स्ट पैराग्राफ ये चीज़ है, सो दैट वो काफ़ी टाइम सेव करने लगा. सो आई थिंक इनिशियली जो भी स्टार्ट कर रहे हैं मे बी पैराफ्रेजिंग डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं, बट इनिशियली लिख के एंड बाद में अपने माइंड में बना सकता है कि अच्छा माइंड मैप में ये पैराग्राफ में ये था, इस पैराग्राफ में वो था. बिग प्लस एब्सोल्युटली. एक और चीज इसमें बताना वर्बल में, पहले क्वेश्चंस देखते थे कभी या फिर नो फर्स्ट यू विल रीड द पैराग्राफ एंड देन यू विल सी द क्वेश्चंस? नहीं, आई वुड रीड द पैराग्राफ फर्स्ट. आई वुड रीड द पैराग्राफ फर्स्ट एंड ओनली देन go on to look at the questions. Okay, सेम काफ़ी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं क्वेश्चंस पहले देख लेता हूँ कि क्या क्वेश्चंस कन्वीनियंट है मेरे लिए, एंड बट आई डोंट नो हाउ दैट स्ट्रैटेजी वर्क्स. मैंने वो ट्राई किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मतलब व्हेन आई वाज आल्सो गिविंग मॉक्स लाइक यू सेड कि वो होता है ना कि मैं और कैसे इंप्रूव करूँ.
और मुझे लगा पर्सनली कि मैं डबल टाइम वेस्ट कर रहा था कि मैं पहले एक बार क्वेश्चंस पढ़ूंगा, फिर मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा, और फिर जब मुझे आंसर करना होगा तो ऑफकोर्स मैं दोबारा वो क्वेश्चंस को पढ़ूंगा. तो आई वॉज डूइंग इट ट्वाइस. तो मैं चाह रहा था कि जब भी मुझे कुछ चीज़ दोबारा पढ़नी पड़े, इट शुड बी एब्सोल्युटली एसेंशियल कि मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ उसको. तो दैट्स वाई आई सेड कि when I'm looking at a question, अगर मुझे याद है कि वो exactly पैराग्राफ में कहाँ है तो it becomes easy. Otherwise I'm having to read it second time, तो वो मेरे लिए टाइम वेस्ट है. एग्जैक्टली सेम थिंग. मुझे लगता है क्वेश्चंस मतलब पढ़ लिया, बट ऑप्शंस अल्टीमेटली एक क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाता है कि कितना क्लोज ऑप्शंस है आरसी में. 100%. एंड आई थिंक जब तक पैराग्राफ नहीं पढ़ा है तो पता भी नहीं चलेगा कि कितने क्लोज ऑप्शंस है या फिर दे आर फार अपार्ट. तो दैट्स डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज. एंड आई थिंक यहाँ पर आरसी में मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ, लाइक आई ऑब्वियसली लाइक गिव देम टर्म सो दैट लोगों को याद रहे, बच्चों को याद रहे. सो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड जनरल क्वेश्चन, बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ. सो स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन की which of the following मतलब what is mentioned in this particular paragraph, what does the author mean by this particular word in the passage. तो ये specific questions में you can come back to the passage. And general questions जैसे हो गए, तो what is the main idea of the passage. इन questions में if you are coming back मतलब you're not able to comprehend the passage in the first attempt, तो उन questions में वापस नहीं आना चाहिए. बट कोई भी specific questions होगा you can definitely come back. एक बार वो paragraph पता है कहाँ पर लिखा हो गया है वो word, वो रेफर कर लो एंड देन आंसर इट. एब्सोल्युटली. ठीक है, तो वर्बल से अब नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं. DILR काफ़ी आजकल मतलब ऑब्वियसली आई थिंक हमारे टाइम भी हो गया था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सेट्स हो गए थे, अभी भी वही है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सेट्स है. तो DILR का प्रिपरेशन कैसे किया था? DILR का प्रिपरेशन, आई थिंक आई ऑलवेज लव्ड DILR. इट वाज लाइक पजल्स एंड गेम्स. तो ऐसा था कि रात में कभी भी लेके बैठ जाओ तो यू कैन लाइक स्पेंड टाइम डूइंग इट. आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्ट टेक्निक डिड आई deploy in sort of solving it fast, but I think DILR के लिए main focus था in the exam on I think how do you choose the right questions. That I think was the main game changer for me, rather than कि मैं कौन सा DILR को कौन से टेक्निक से जल्दी सॉल्व करूँ, बट रादर कि if I pick the right questions जिसको मैं faster solve कर सकूँ, that would change like the full outcome of the mock for me. In the mock that I have chosen the wrong question to do, जिसमें बहुत complicated हो गया है, I would end up making a disaster. And in the mocks where I would choose the right ones, and usually the right ones, quote unquote right ones, would be DI ones, because they would take sort of lesser time than the LR ones जिसमें बहुत ज़्यादा complicated. Of course, it's not a golden rule. Because some LRs are more easier than some DIs. Right. But mostly I would target something like a graph which is easily interpretable, and I would say कि okay, this is probably a faster thing to do. I think वो practice mocks practice करने से ही वो चीज़ आता है कि यार कौन सा set you can pick up, कौन सा set मुझे easy लगेगा, कौन सा set difficult लगेगा. I think that comes from the mocks only. And इसलिए again mocks become important. But मेरा भी again same LRDI में again like छोटे से sudokus, शकुंतला देवी का पजल बुक्स, ये सब सॉल्व कर रहा था. सो मेरे लिए भी काइंड ऑफ नेचुरल ट्रांजिशन था कि कैट का पेपर दूंगा, ये इतना आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट मॉक से मार्क्स अच्छे आ रहे हैं. बट अगेन व्हेन आई हैड टू टेल द पीपल मतलब क्या स्टार्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर उन्होंने कभी कुछ नहीं किया तो सुडोकू से स्टार्ट करो, पजल्स ये डेवलप करो हैबिट. बिकॉज अगेन फॉर यू एज वेल, जेई के लिए जितना प्रिपरेशन डाला होगा, जितना दिमाग लगाया होगा, तो ऑब्वियसली DILR बिकम्स लाइक अ गेम, मतलब वो गेम बन जाता है. देन यू हैव फन सॉल्विंग दोस सेट्स रादर देन वो स्ट्रेस. तो इसलिए जो नहीं मतलब उस प्रोसेस से गया है तो डेफिनेटली वो सुडोकू सॉल्व करना वो सब स्टार्ट कर सकते हैं. एंड मे बी जो इनिशियल का वो होता है, कुछ बुक्स होते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, उनसे एटलीस्ट बेसिक बार ग्राफ्स क्या होते हैं ये सब टेस्ट कर सकते हैं. अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स का बेसिक लेवल पे कैसे सॉल्व करना है, टेबल्स कैसे बनाने हैं, ये सब से शुरू कर सकते हैं. एंड देन दे कैन, जैसे जैसे मॉक्स होता रहेगा, दे विल ग्रेजुअली इम्प्रूव. एंड देन दे वुड बी एट अ स्टेज वेयर अगेन दे वुड बी एबल टू चूज द राइट सेट्स डिपेंडिंग ऑन कि कितने मॉक्स दिए हैं, कौन सा ईजी है, कौन सा डिफिकल्ट सेट है, वो अपने आप आ जाएगा. ट्रू एंड आई थिंक क्या बोलते हैं, इट इज अ लॉट लाइक अ गेम. मतलब कि इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस आल्सो कि किसने वो ब्लू ग्रीन कौन सी हैट पहनी थी, एंड इट्स लाइक कि इफ यू मिक्स अ बर्गर विद द पैटी विद द लेट्यूस, देन इट बिकम्स दिस. एंड पीपल प्ले ऑफ दोस गेम्स आल्सो, राइट, जिसमें वो बर्गर पैटी लेट्यूस को मिला के यू हैव टू सबमिट इट, बस कैलकुलेशन करना है, नंबर्स डाल दिया इस पे. एंड आई थिंक बट वो लेवल ऑफ थिंकिंग में आने में, मतलब मैं जब पहले वीडियोस बनाता था मैं ये गलती करता था. आई यूज्ड टू थिंक कि सब लोग इसी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं यार. तो मैं एडवाइस देता था कि आपको कुछ करना ही नहीं, आप सीधा मॉक्स जाओ और मॉक्स से ही प्रिपेयर कर सकते हो. देयर इज नो अदर वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर LRDI. फिर समझ में आया कि नहीं, इट्स नॉट द सेम लेवल फॉर एवरीवन.
काफ़ी लोगों ने ऑब्वियसली फॉर इंजीनियर्स इट बिकम्स काइंड ऑफ ईजियर एज वेल बिकॉज वो उस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हैं. नॉन इंजीनियर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड काइंड ऑफ थोड़ा बाइस्ड होता है आई बिलीव ऑब्वियसली इंजीनियर्स के लिए. बट ऑब्वियसली यू कैन कम बैक टू द सेम लेवल. वो उस लेवल पे आ जाओ, उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. बट ये DILR के लिए. एंड अगेन ऑब्वियसली कमिंग टू आवर फेवरेट सेक्शन क्वांट. आई थिंक यू वुड हैव आल्सो प्रिपेयर्ड इन द सेम वे, बट स्टिल आई वुड वांट टू हियर फ्रॉम यू कि क्वांट कैसे प्रिपेयर किया था, या कुछ किया भी था कि नहीं प्रिपेयर. क्वांट के लिए टू बी ऑनेस्ट क्या बोलते हैं, रियली मतलब नॉट मच टू प्रिपेयर. आई थिंक अगर कुछ किया था तो इट वाज प्रोबेबली कि मैं इस क्वेश्चन को और जल्दी कैसे करूं, क्योंकि मुझे अगर इनफाइनाइट टाइम दे दिया गया तो वो सॉल्व तो हो जाएगा. हाउएवर समटाइम्स आई वुड फील कि अरे इस तरह का अगर ये ज्योमेट्री क्वेश्चन है, मैंने हर एक एंगल को निकालने के बाद मतलब ये वाला निकाला तो फिर तो मेरा तो टाइम जा रहा है. तो मे बी इन दोज केसेस आई प्रॉब्ली मेड अ नोट, मुझे जहाँ तक याद है, ऑफ की फॉर्मूलाज, राइट, विच वुड सॉर्ट ऑफ बी लाइक माई सॉर्ट ऑफ बाइबल काइंड ऑफ थिंग, कि जस्ट एग्जाम में जाने से पहले जस्ट सी कि वो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, जस्ट सो दैट माई माइंड नोज एंड सो दैट व्हेन आई सी द क्वेश्चन वो फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ जाए. दैट्स द ओनली crux, right? And if that formula pops into your mind at the right time, you are able to solve it quicker. Same. I think मैं भी जब कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, बीच में कोई एक ऐसा ट्रिक मिल गया जिससे प्रॉब्लम मैं डायरेक्टली उस स्टेप पे पहुंच जाऊँ आफ्टर स्किपिंग लाइक 4-5 स्टेप्स, उसको नोट डाउन कर लिया एज अ ट्रिक कॉपी में, एंड उसको ट्रिक जब भी वो सेम एज टाइप ऑफ प्रॉब्लम आया उसको यूज़ कर लिया. एंड डेफिनेटली यहाँ पर भी अगेन मैं भी जब शुरू कर रहा था मॉक्स एंड ये सब से ही ज़्यादा शुरू किया था, डायरेक्टली सॉल्व करना क्वेश्चंस. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इन क्वांट्स एटलीस्ट उनको अगर थ्योरी कवर करना पड़े, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया फॉर देम, स्पेशली अगर जिसका 10th तक मैथ्स इतना अच्छा नहीं था. सो फॉर देम इट्स अ गुड आइडिया कि वो पहले बेसिक थ्योरी कवर करो, उसके बाद देन जंप टू द प्रॉब्लम्स एंड देन टू द मॉक्स एंड सेक्शनल्स एज एंड व्हेन. करेक्ट. एंड आई थिंक गुड स्ट्रैटेजी ओवर देयर आल्सो इज इफ दे कैन फिगर आउट कि कौन से टॉपिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट. सो यू अटैक टॉपिक वाइज कि डोंट स्पेंड ऑल योर टाइम डूइंग कि मैं अलजेब्रा ही मतलब सॉल्व किए जा रहा हूँ. मे बी यू सी कि अलजेब्रा से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो यू स्पेंड लाइक equivalent amount of time on these topics and then try attacking it topic wise. Exactly. and मैं 50-day strategy बनाता हूँ उन लोगों के लिए. For them like basically trend wise analysis कर देता हूँ कि क्या ट्रेंड रहा है past year में. हमेशा देखा गया arithmetic maximum questions आएंगे, almost 60-70% questions cover हो जाएंगे if you do arithmetic and algebra. Correct. तो बस ये topic करके जाओ. 70% अगर पेपर में अगर if you even solve 50% of the paper बहुत अच्छी percentile आ जाएगी. So definitely वो ये that's an important point as well कि trend analysis कर लो previous years का. Arithmetic algebra will always be at the top. उसके बाद ज्योमेट्री थोड़ा कमेगा, उसके बाद नंबर सिस्टम और कम जाएगा एंड सो ऑन. एंड ज्योमेट्री में भी देयर आर सम टॉपिक्स लाइक ट्रायंगल, सर्कल्स जिसमें ज़्यादा आता है. सो वो ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, बट दैट इज ओनली फॉर पीपल आई गेस जो 50-day 90-day का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. जो 1 year का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उनको मैं हमेशा बोलता हूँ भाई सब कुछ पढ़ो, उसके बाद देख लेंगे कि मॉक्स जब शुरू होगा उसके बाद किस पे एफर्ट डालना है, उसके बाद देख लेना. नहीं, if I have someone like you to make my trend analysis and strategy, मतलब I would fully rely on that and be very focused. Thank you so much. But obviously तुम मतलब कुछ नहीं देख के भी क्रैक कर लेता है कैट. I know for a fact कि जितने भी I think काफ़ी लोग हैं IIM अहमदाबाद में, most of the people, obviously there are some people who would have required some assistance, but there are a lot of people I feel कुछ होता नहीं होता they would have cracked CAT examination. वो just CAT एग्जाम देने आ जाते, वो क्रैक कर जाते हैं यार. एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ दोस. No, I don't know. मतलब I would still say कि it's a lot of it is also fate, because on that particular day, what your mindset is on that particular 2-3 hours, how you are sitting with the paper, and the margin of error is also so limited. Exactly. and that anything बहुत could important happen. point बोला यार. like CAT 24 aspirants, especially जो अभी CAT 24 नवंबर को CAT है, जो देने वाले हैं CAT एग्जाम, सो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट प्रिपरेशन इज वेल. मार्जिन ऑफ एरर काफ़ी कम है. जैसे मैं बोल रहा था 99.9 आया मेरा, मैं एक क्वेश्चन अगर गलत करता 99.8 हो जाता वो ऑब्वियसली, एंड मुझे अहमदाबाद का कॉल नहीं आता. सो मार्जिन ऑफ एरर एक क्वेश्चन था टू गेट एन एडमिशन टू IIM अहमदाबाद. जब मेरा 99.21 आया था 2017 में भी, तब भी इट वॉज लाइक मतलब ऐसा कुछ प्रिपरेशन में बहुत डिफरेंस नहीं था. इट वॉज जस्ट दैट काफ़ी सारे सिली मिस्टेक्स करके आया था. उस टाइम भी अगर मैं मान लो 4 क्वांट के क्वेश्चन ज़्यादा करके आता तो शायद उस साल ही एडमिशन हो जाता. IIM कैलकाटा में भी, IIM अहमदाबाद में, आई डोंट नो, बट उस साल भी हो सकता था.
बट ऑब्वियसली थैंकफुल कि मतलब मैं जब गया उसके बाद जॉब किया, कुछ सीखा, आई थिंक दैट हेल्प मी डेवलप अ लॉट ऑफ स्किल्स एज वेल. आई थिंक जो हुआ अच्छा हुआ, बट लक फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेशली इन एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन. आई थिंक ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन कुछ भी गलत हो सकता है, सही हो सकता है. True. And I don't think any aspirant, giving the exam should think that this exam sort of defines them. Exactly. Because anything can happen at that particular day. However, the preparation that you have done in your life will definitely come into use. जैसे तुमने बार बार बताया है कि कि जेई का प्रेप था साथ में, तो it became easier to do this. So now on that eventful JEE day, I may not have scored well and I may not have done well. However, my effort into those days sort of carried over to this day where when I was giving CAT, it sort of kicked in. So important. And लोग बोलते हैं कि यार IMIT टैग डिफरेंस बनाती है क्या, इंस्टीट्यूशन में जाके कुछ ऐसे सीखते हो गया. आई बिलीव इंस्टीट्यूशन में जाने के पहले जो एफर्ट डालना पड़ता है ना, दैट फिल्टरिंग मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है, वो एफर्ट काफी कुछ सिखा देता है. लाइक यू लर्न टू डू कंसिस्टेंटली बोरिंग स्टफ. किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है यार, लेकिन वो बोरिंग चीज, सेम चीज करते जाना, वो प्रोसेसेस, सेम प्रोसेस रिपीट करना एवरी डे, दैट्स डिफिकल्ट. मतलब वो भी एक स्किल है. बिल्कुल. आई थिंक मेरा यहाँ पर लाइक एक स्टोरी, लाइक जेई में, मतलब एडवांस में आई थिंक आई गॉट 10,000 11,000 जैसा रैंक, विच वाज नॉट इनफ टू गेट इनटू IIT. एंड आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन कि मैं वो एफर्ट नहीं डाल पाया था जेई एग्जाम में. मतलब जब स्टार्ट किया था, आई थिंक मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग था, काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था, प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग. उसके बाद इतना एफर्ट नहीं डाला, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया, जब इनिशियल मॉक्स था टॉप कर रहा था, 12th में जाते ही वो धीरे धीरे इफेक्ट दिखने लगा, क्योंकि बाकी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं. एंड वो जब 12th के एंड में आया ना, तब मुझे समझ में आया कि क्या मिस किया है मैंने. एंड देन बहुत डिफिकल्ट हो गया था. फिर जेई एडवांस आया, अराउंड 10,000 11,000 रैंक आया, अच्छा नहीं था टू गेट इनटू IIT. एंड देन जब मैं इंजीनियरिंग में गया, तो उसके बाद रियलाइज हुआ कि यार IIM में अगर जाना है तो ये एक चीज़ करना है कि यार भाई एफर्ट डालना है. उसमें जितना एफर्ट डाल पाओगे, मतलब नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू थिंक यू आर, हाउ स्मार्ट यू थिंक, यार वो एफर्ट तो एक बार तो डालना पड़ेगा. सो दैट वाज, मतलब वो एक स्किल सीखा. एंड काफ़ी लोगों ने बोला कि यार IITian में, यार ये वाले में जिस कॉलेज में था उसमें इतना डिफरेंस नहीं है, वो IITian अल्टीमेटली सेम स्किल सीखते हैं, कंपनीज भी सेम आते हैं कैंपस में, यू कैन डू द सेम थिंग. लेकिन वो दिमाग में एक था कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट दे लर्न एट IIT या फिर व्हाट आई लर्न इन माई कॉलेज, इट्स मोर अबाउट कि वो बंदा IIT गया है तो ही एक स्किल है उसके पास, जो शायद मेरे पे नहीं थी. एंड दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स प्रॉब्ली एन IITian फ्रॉम मी. वो बोरिंग नहीं, बट आई थिंक यू आर केस इन पॉइंट, मतलब कि नो मैटर योर दिस थिंग, बट आई थिंक यू पुट डिसेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट टू इवन कम अप विद अ 10,000 रैंक इन जेई एडवांस. एंड वो जो एफर्ट आपने जो दिया, जब कैट एग्जाम देना हुआ, दैट्स व्हाई यू फेल्ट कि क्वांट वाज नॉट सच अ बिग टास्क फॉर यू, DILR वाज नॉट इतना बड़ा थिंग. एंड इट्स एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक द सेम वे फॉर ऑल कैट एस्पिरेंट्स आल्सो टुडे गिविंग दिस एग्जाम. The preparation is also building you. You should take it like that कि it's not that कि exam के दिन जो भी होता है, the preparation will always stay with you. So no matter you are planning for which school, ऊपर नीचे मेरा क्या मॉक में आ रहा है, you should give it with like 100% effort preparation, so that effort builds with you, and no matter what college you get into, that effort sort of, and that your built up self sort of gets cascaded. राइट. एंड सो इम्पॉर्टेंट, मतलब एटलीस्ट अगर किसी भी IIM अहमदाबाद ग्रेजुएट से बात करोगे ना, किसी ने भी कैट में 98 परसेंटाइल लाया होगा, दे नो दैट पर्सन कुड हैव प्रॉब्ली लैंडेड एट IIM अहमदाबाद ऑन द डे एज वेल. अब वो 98 वाला 99.9 भी ला सकता था. इट्स जस्ट द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, 4-5 क्वेश्चन इधर उधर, एंड कुड हैव हैपेंड. एंड इसलिए काफी लोग बोलते हैं IIM अहमदाबाद, बट IIM अहमदाबाद वाले भी अंदर से इनसिक्योर रहते हैं कि भाई ये बंदा टैलेंटेड है, कुछ भी हो सकता था. लक बहुत बड़ा फैक्टर था. आई थिंक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनसाइट्स है लोगों को कि यार IIM अहमदाबाद वाले भी इनसिक्योर रहते हैं कि यार very insecure. I think more than other people, they're more insecure. मतलब हाँ, जॉब में क्या होगा, जॉब में मैं अच्छा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ये सब काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है यार. लाइक सो गुड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन फाइनली विद समवन. एंड अभी भी मैं जो कर रहा हूँ ना, लाइक आई फील IIM एंड जो प्रिपरेशन स्टेज में जो स्किल्स सीखे थे, इवन इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, ग्लोरीफाइड लगता है काफ़ी लोगों को. स्टार्टअप 5% चीज़ें होती हैं वो कि VC से पैसा उठा लिया, मैगजीन में वो आ गया, फोटो आ गया. बट 95% जो है ना, वो तो बोरिंग चीज़ है यार. सेम चीज़ रिपीट करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन में, इतना बोरिंग चीज़ें रिपीट करनी है, वो नहीं देखते. तो आधा बिजनेसेस तो वहाँ पर फेल हो जाते हैं. एंड आई थिंक व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन IIT के लिए, जेई के लिए या कैट के लिए, दैट काइंड ऑफ वो बोरिंग चीज़ करना, 14 hours 15 hours इन अ डे, वो चीज़ बोरिंग चीज़ें करना, आई थिंक वो सिखा देता है स्किल. 100% पुटिंग कंसिस्टेंट एफर्ट, very dedicatedly
and being able to sort of do multiple things. I think these are things you want to learn in life, and I think that is what you carry in the real life, rather than मतलब people think कि अरे ये करने से शायद मेरे marks नहीं आएंगे. But I think what really matters is you are able to put in this work ethic, build up this work ethic, do consistent effort, and then be able to build yourself. चलो कि यार कैट प्रिपरेशन से ना एक डिफरेंट टॉपिक्स में आते हैं. लाइफ्स देखते हैं कि IIM में लाइफ कैसी थी, IIT में लाइफ कैसी थी. एक्चुअली रैपिड फायर से स्टार्ट करता हूँ Okay. कि IIT IIM के बीच में क्या था, ठीक है. तो कुछ क्वेश्चंस हैं. Okay. IIT IIM में कंपटीशन ज़्यादा कहाँ था एकेडमिकली? Academically fierce competition. I am very very fierce internal competition. ओके. और लाइफ कौन सा ज़्यादा एंजॉय किया, कैंपस लाइफ, IIT या IIM? Campus life enjoyable I think was more IIT. I think उसमें बहुत कुछ कर रहे थे. We were doing like we could do so many things. Robotics में घुस जाओ, swimming में, sports में पूरा था, and I was also doing some electric vehicle research. It was like कि academics के अलावा मतलब 80% टाइम कहीं और था. academics को कैसे squeeze करके मतलब निकाल रहे थे. 4 years भी था आई थिंक. 2 4 years years आई थिंक. भी. फाइनल सबको पता है कि यार प्लेसमेंट लगानी, अब तो फाइनल ईयर है. True. आई थिंक IIT में वो उस माइंडसेट से भी जाते हो कि यार एंजॉय करना है थोड़ा, इतना पढ़ाई कर लिया. ओके, नेक्स्ट, व्हिच वन वाज मोर डिफिकल्ट टू गेट इनटू, IIT IIM? Definitely, I think IIT was more difficult to get into. It required like very dedicated effort. JEE is like a much tougher exam compared to IIMs. Not taking credit away from getting into matlab IIM, but of course it's more difficult to get into IIT. Definitely accepted because dedicated preparation चाहिए एक में. IIM में maybe different type of skill चाहिए CAT exam के लिए, not necessarily preparation एकदम dedicated 2 साल का. It's probably hard to measure because जब आप IIT के लिए prep करो, your age is also थोड़ा सा lesser, and then you have like 4 years of your maturity experience also to sort of account for. Right, and I think questions difficult आते हैं JEE में, so you have to do that preparation, but CAT में you have to be very smart as well कि कौन सा question छोड़ना है, कौन सा questions नहीं attempt करना, वो सब ज़्यादा important हो जाते हैं. Correct. तो smartly attempt करना पड़ता है paper rather than preparation. Makes Absolutely. sense. Academically heavy कौन सा था ज़्यादा, IIT या IIM? Academically heavy, I think from IMA perspective definitely मतलब academically heavy तो IMA था मतलब. Definitely, I think for the audience मतलब across IIMs भी काफ़ी differ करता है academics. So IIM Ahmedabad is known for academics. काफ़ी definitely बहुत difficult होता है. But IITs I think वो भी academics मतलब I think थोड़ा chill हो जाता है लेकिन. नहीं, I think क्या बोलते हैं, मेरा electrical था तो it was heavy. But I think कि compared to मतलब how packed we were in मतलब Ahmedabad, I don't think कि उतना packed था. मतलब it allowed so much flexibility for other things कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इतना heavy नहीं था जितना Ahmedabad था. Overall learnings कहाँ ज़्यादा था? Like not only academically but in general, IIT, IIM. Oh my God. Overall learnings कहाँ ज़्यादा थी? I think it's just too hard to compare because you of course acquire different sort of skills in both schools and very different learnings, different stages of life also. So I think it's just very difficult. In IIT you are more explorative and क्या बोलते हैं, you are also trying out different things. You feel like कि मतलब there is no limit to what you can do. And in IIM you are like trying to cut down on the things that you have on your plate and how do you like efficiently manage all that you have to do. Right, I think energy भी कम जाती है यार. नहीं जाना, सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, उसमें कट डाउन करना पड़ता है. Okay, अच्छा, अगर एक चूज करना पड़े अब IIT या IIM, which one will you choose again in life? This is an impossible question. मतलब it's not possible to answer this. No, I mean it's like cutting out one half and saying which half would you like prefer. It's just not possible. So अगर वापस जाना पड़े अपने करियर में, you would again choose the same life, IIT IIM वाला? Yes, definitely, most definitely. It's been really great. I think each memories out of these two places is just priceless. If there's anything I could give back, something just to go back to live that life again. चलो यार, थैंक यू फॉर दिस. मतलब काफ़ी अच्छा था रैपिड फायर. बट इसमें लाइफ में आते लाइक डिटेल्स लाइफ में. एक चीज़ बताओ यार जो यू हेटेड एट IIM स्पेशली. IIT का बात नहीं करते, IIM का बात करते हैं अब. Okay. One thing you hated about IIM life? I think there's one thing I would say कि I think there was a lot of, जैसे हमने डिस्कस किया कि इतना internal fierce competition है between peers. I think if there was some way we could like get over that,
that would be the best thing. मतलब the competition is like so fierce inside, and I think it's part of how the system is also designed, with everything from relative grading, strictly relative grading. Like you could get C's at like scoring 90 out of 100. So I think मतलब naturally कि वो इतना इंड्यूस कर देता है कंपटीशन की, अगर मुझे सामने वाले से बेटर आया तभी मतलब मुझे आता है. आई थिंक that is, I think, the bad part, where I would want things to be sort of more collaborative in nature. राइट यार, कितना लाइक हम लोग बोलते भी थे यार आरजी, बेसिकली द RG वर्ड was the दैट वी term. यूज आरजी. Relative grading, but it was a synonym for मतलब anyone who's trying to be very competitive. राइट, एंड अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता था एट टाइम्स. आई रिमेंबर, इनफैक्ट मुझे ये भी याद है, मैंने एक बार एक्सेल पढ़ाया था क्लास को, एंड जब फाइनल एग्जाम हुआ आई स्कोर्ड आई थिंक 95 या 96 आउट ऑफ 100, एंड मुझे बी पॉज आया था, बी ग्रेड आया था उस एग्जाम में. एंड आई एम लाइक यार मेरा टॉपिक, मैं उस टॉपिक में पूरे बैच को पढ़ाया, आई गॉट 95 96, एंड उस टॉपिक पे बी मिल रहा है. सो ग्रेड ऐसे फॉल हो रहे थे, 100 पे ए पॉज, उसके 99 पे ए, उसके बाद देन ए नेग, मतलब इतने एक मार्क्स, आधा मार्क्स पे मतलब ग्रेड गिरा रहे हैं. तो इट वाज, एंड एक मिस्टेक किया मैंने एंड सीधा ग्रेड गिर गया. सर उस लेवल का कंपटीशन, तो काइंड ऑफ हेल्दी कंपटीशन भी अच्छा लगता था जब ये मार्क्स ये सब हो, बट काफी बार अनहेल्दी कंपटीशन भी हो जाता था. लाइक पीपल्स, आई थिंक वे मेंटालिटी होती है कि देयर इज ओनली लिमिटेड प्लेस एट द टॉप, और देयर इज ओनली लिमिटेड वेज टू रीच अ पर्टिकुलर पोजीशन. तो सबका वो फिक्सेटेड रहता है, आई थिंक कि अच्छा इसी पाथ में जाना है, अदरवाइज शायद अगर वो नहीं हुआ तब मैं जा पाऊंगा. बट प्रॉब्ली लेटर आई थिंक वी रियलाइज आफ्टर कमिंग आउट ऑफ बी स्कूल दैट probably there are multiple ways of reaching a position, and there is enough space at the top for everyone. True. I think you should tell everyone कि you actually, there are these classes that students take, and Ananta was one of them who taught everyone कि Excel का जो कोर्स होता है, how do you navigate that, how do you quickly solve those things. He would take like maths classes. तो एक्सेल एक्चुअली, बिकॉज ये अगर मैं फर्स्ट ईयर आ जाता ना MBA करने तो शायद नहीं कर पाता, बिकॉज मैंने जॉब में बहुत सीखा ये चीज़. मेरा वर्क ही ये था, मैं एनालिस्ट था एंड एग्जैक्टली डेटा एनालिटिक्स करता था. सो वही सीखा था एंड वही एग्जैक्टली हेल्प किया मुझे वहाँ पर भी, IIM अहमदाबाद में भी. बट द फैक्ट दैट उस टॉपिक पे, एक्सेल के टॉपिक पे, विच इज लाइक आई कैन लाइक सॉल्व, मैं माउस भी नहीं यूज़ करता हूँ एक्सेल में, आई जस्ट लाइक हैव द कीबोर्ड एंड मैं कंप्लीट शॉर्टकट से यूज़ करता हूँ. उस लेवल पे अगर हूँ एंड देन मैं देखूँ कि यार मुझे आ रहा है, बी आ रहा है उस सेम कोर्स में, इट वाज लाइक यार क्या लोग हैं. नाउ इमेजिन, मतलब फॉर एनी नॉर्मल पर्सन, अगर एक रात पहले तुमने ही मुझे पढ़ाया है कि इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, एंड अगले दिन मैं, जिसको मतलब इतना ज़्यादा एक्सेल नहीं यूज़ किया हुआ उस टाइम पे, अगले ही दिन मैं जाके मतलब ए ले आऊँ एंड क्या बोलते हैं, अनंता गेट्स अ बी पॉज, तो नेचुरली अनंता विल क्वेश्चन हिमसेल्फ नेक्स्ट टाइम कि यार मुझे कोर्स लेना चाहिए, मुझे सबको पढ़ाऊं कि नहीं मैं एक रात पहले. यार ट्रू, लेकिन एक्चुअली वैसा आया नहीं दिमाग में कि अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा. मुझे याद है कि इसीलिए यू वर नॉट लेबल्ड आरजी. प्रॉब्ली मुझे याद है एक कोर्स था हम लोग का कोविड में, आई थिंक दे वर ऑप्शनल कि कुछ एग्जाम दे सकते हैं, कुछ नहीं एग्जाम दे सकते हैं. तो मैंने एक कोर्स पढ़ाया था SOM, आई थिंक क्या टॉपिक मैं भूल गया, फुल फॉर्म किया था उसका, और फिर एग्जाम नहीं दिया वो वाला, क्योंकि मैं ऑप्शनल था, मैंने एग्जाम नहीं दिया था, बट वो पढ़ाया था. बट अगेन वो एक्सेल में आई थिंक दैट मुझे, मैं काफ़ी पॉजिटिवली भी लेता था, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे फ्रेशर्स थे जो एक रात पहले डॉम वाले थे जो आए थे पढ़ने के लिए, एंड उन्होंने उस टेस्ट में 100 स्कोर किया लाइक एक्सेल में. आई वाज लाइक damn, this is like really good and nothing feeling like कि यार उसने कैसे स्कोर कर लिया. इट्स लाइक भाई उसको, जिसको पता नहीं था 7 दिन पहले कि सारे फंक्शंस एक्सेल में अच्छे से यूज़ करना, उसने जाके एग्जाम में 100 स्कोर कर लिया. सो दैट्स गुड टैलेंट, मतलब वो टिपिकल टैलेंट होता है ना. आई वाज लाइक मतलब प्रेज करता कि आज इस प्लेस में हूँ मैं, इन लोगों के बीच में हूँ. आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ अ privilege. But of only course thing. it needed people like you also जो मतलब पढ़ा सके, or like a fresher like me. if मतलब क्या बोलते हैं, all of those people, the CAs in our batch, and Definitely मतलब यार, CAs ने लाइफ बचा लिया था. if अगर वो नहीं पढ़ा रहे होते हमें, तो मतलब it would have been very difficult. सच में यार, CS लाइक 4 ईयर का जो उन्होंने 4 साल पढ़ा था, उन्होंने 1 मंथ में या फिर 1 दिन में पढ़ा देते यार हम लोगों को. I remember the first class हुआ था accounts वाला, एंड सम ऑफ द BCom वाले लोग बोल रहे थे कि बिकॉज हमारे तो सर सब बाउंसर गया कि पता नहीं कहाँ बैलेंस शीट और क्या इनकम स्टेटमेंट क्या मैच करवा दिया है, एंड द BCom folks told me कि ये हमने जो मतलब
3 साल का बीकॉम किया है वो करीब उन्होंने कवर कर दिया एक क्लास में, खत्म कर दिया उसको। लाइक तो मैं कहाँ से मुझे कुछ भी समझ में आएगा अगर आपने एक क्लास में ही पूरा कुछ बोल दिया। एग्जैक्टली एंड जो फिर आते थे वो पढ़ाने, एटलीस्ट ठीक है डिटेल्स में नहीं जाते थे लेकिन ऐसे फिक्सेस बता देते थे कि भाई किसी तरह बैलेंस कर पाऊँ उस बैलेंस शीट को एग्जाम में। एंड आई थिंक वो काफी अच्छा था। आई थिंक दैट वाज वन गुड थिंग एज वेल कि लोग हेल्प करते थे, काफी लोग थे जो हेल्प करते थे डिस्पाइट ऑल ऑफ द कंपटीशन। पीपल वुड हेल्प ईच अदर। डेफिनेटली हेल्दी कंपटीशन भी था, अनहेल्दी कंपटीशन भी था, बट यस आई काइंड ऑफ एग्री एज वेल। वो अनहेल्दी कंपटीशन काइंड ऑफ लोगों को लगता है कि यार फाइनल स्टेज है, मुझे ये जॉब चाहिए वो जॉब चाहिए, तो काइंड ऑफ वो मिक्स हो जाते हैं। बट टोटली एग्री विद दिस। आई थिंक व्हाट वी लव अबाउट IIMS इसमें ही कवर्ड हो गया, दैट कंपटीशन है बट टैलेंट भी ऐसा है, वी आर सराउंडेड बाय दोस काइंड ऑफ पीपल दैट इट फील्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राउड। 100%. I think exactly like you said कि while the part that we hate is so much fierce internal unhealthy competition, and I think some of it is because of the design itself, and despite that there are people who would want to come forward and help each other and do all of this collaboration. I think is the part where we of course love about IIMs. इसी टॉपिक पे एक टिपिकल डे बता दो यार फॉर एनी एस्पिरेंट हु मे बी बी स्कूल जाना चाहते हैं। अगर IIM अहमदाबाद जाना चाहते हैं कोई, देन डेफिनेटली उनको डिटेल में पता चल जाएगा। बट स्टिल कोई भी MBA कॉलेज ज्वाइन करे, एक टिपिकल डे बताओ यार, हाउ वाज योर लाइफ। मैं काफी कवर करता हूँ अपने चैनल पे ये पर्टिकुलर टॉपिक, सो आई वांट टू हियर फ्रॉम यू दिस टाइम कि क्या होता है। हाउ वाज द टिपिकल डे? टिपिकल डे था कि आई थिंक 8:45 कुछ यू वुड हैव क्लासेस, it would go on till 1:30 ऐसा कुछ जाता होगा, 1 o'clock या शायद ऐसा कुछ था। So and I remember 1 o'clock because you would get a 45-minute window जहाँ पर you can go run and get lunch, क्योंकि 1:45 को you could get an exam or you could not get an exam, मतलब और वो कौन से टॉपिक पे टेस्ट होगा क्या होगा कुछ नहीं पता, राइट? सो तो इट वुड बी समथिंग लाइक कि वुड गो एंड हैव लंच एंड फटाफट, एंड देन ऐसे घड़ी का वेट कर रहे होते थे कि 1:44 एंड देन 1:45 रिफ्रेश एंड सडनली हार्ट ब्रेक। ऑडियंस को अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं हो तो उनको बता दो, लाइक 1:45 सरप्राइज क्विज का नोटिफिकेशन आता था IIM अहमदाबाद में कि अच्छा आप एक मैसेज आता था एंड एक नोटिस बोर्ड होता था लाइक IIM अहमदाबाद जस्ट कैंटीन के बाहर, जहाँ एक ऑफिशियल आता था एंड वहाँ पर नोटिस लगा के जाता था कि 1:45 दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड ये फॉर्मेट है एंड ये टॉपिक्स कवर किए जाएंगे उस एग्जाम में। उसके पहले नो वन हैड एन आइडिया कि वो एग्जाम क्या होने वाला है, सो दैट वाज अ सरप्राइज क्विज एलिमेंट जो होता था। एंड दैट एग्जाम विल हैपन एट 2 o'clock। यस 2 o'clock से स्टार्ट हो जाएगा, 2:30 आई थिंक कुछ रहता था अराउंड दैट टाइम। हाँ, सो यू हैव दैट मच विंडो ओनली to basically prepare now if you haven't prepared, and essentially all the tests in the first year were in this format ki you would not be told ki what test will happen. Exactly. And I think that is the most fearful part of the whole academic exercise. I think it makes the whole academic exercise kya bolte hain 2 times harder, because Definitely. you can study all you want, but if you're not covered on all topics, Exactly. you might have any test that you can flunk. And engineers के लिए सोचो जो एक रात पहले पढ़ते हैं, अब suddenly सारे subjects पढ़ने हैं उनको पहले से। It is so difficult. Very appropriately said कि सबका आदत ही है कि मतलब you study exam के पहले। हाँ, अब actually काफी लोग का ये habit हो गया था कि भाई लास्ट जो 45 मिनट बचेंगे जितने भी है उतने टाइम में बाकी सब पढ़ना। एंड कैंपस में पता चल जाता था कि जैसे 1:45 हुआ, अगर टेस्ट नहीं है तो सब आराम से जा रहे हैं रूम में, और जैसे ही 1:45 में लोगों को भागते हुए देखोगे कैंपस में, मतलब नोटिफिकेशन है यार। दैट इज ठीक है, चलो क्विज के बाद कंटिन्यू। आफ्टर यू गिव द क्विज कुछ यू वुड कम बैक बाय 3 o'clock ish या फिर 3:30 कुछ भी हो सकता था, and then you would basically have to prepare for the next day, because classes में तो you would only discuss the case and you are not expected to read the case in the class. You have to read the case before day, and you read the case, you do all of that, and then you have to come to class. So you have to read the cases, and then of course you would have these projects that you would have to submit. So some in group, some individual. So you would have the set time fixed कि इस समय library में मिलना है 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, whatever. And then that group project का exercise could lead up to any time in the night. मतलब at 3 AM I think कोई भी library में घुसेगा उसको रियलाइज नहीं होगा कि इट्स 3 AM, बिकॉज इट इज फुल,
इट इज फुल एंड इट इज मतलब बस्लिंग, क्या बोलते हैं, ऐसा लगता था कि अभी तो दिन के 3 बज रहे होंगे शायद. Like full campus, I think full campus 3 AM 4 AM realize नहीं होता था यार कि क्या है. I think 4:30 के बाद थोड़ा There realize would होता be, था हाँ. कि एक विंडो है वो 3-4 hours का कि जहाँ लोग नहीं मिलेंगे बाहर, शायद सब रूम में रहेंगे. आई थिंक वही बस विंडो रहता था. एंड आई थिंक वो जो ग्रुप प्रेजेंटेशन वाला बोल रहे थे 8 PM 9 PM, फिर सबको अलाइन करना टाइम, सबका अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों को लाना. इट वाज सो डिफिकल्ट. आई थिंक हम लोग कभी सेम स्टडी ग्रुप में नहीं रहे थे. सेम स्टडी ग्रुप में नहीं थे, But case but we did competitions. case competitions हाँ. together. हाँ, sorry, of course, not just मतलब projects and your case prep, but you'd also have to do this case competitions where we would take up in between, and we did Right. this case competition together. That GSK one. GSK वाला Yeah, था. and we eventually ended up winning that. That's the only case competition, unfortunately, that we did together. And we And got winning. national. Yeah. National में क्या कुछ? Yeah, national runners up. Runners up थे. up. So that unfortunately बहुत late actually कर लिया हमने टीम बनाने में. I think that was काफी सारे पहले competition से participate किया था. And I think वो थोड़े end पे आया था वो competition. And then we decided कि कर लेते हैं ये साथ में. But I think we did very well यार, मतलब उसमें कुछ कैंपस राउंड भी था, वो भी हमने जीता. Right, exactly. And फिर हमने मतलब बहुत सारा प्रेप करके आई थिंक वो प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं होगी. दैट वाज वेरी क्या बोलते हैं डिटेल्ड. वी थॉट ऑफ क्या क्या आइडियाज सोचते थे यार, बहुत मतलब सारे थे. जियो टैग एंड एवरीथिंग, फार्मा रिलेटेड केस था. हाँ, फार्मा रिलेटेड केस था, इमेजिन मतलब. And we were coming up with all of these different ideas, mobile based, it was डेफिनेटली. एंड काफी लोग बोलते हैं कि यार MBA करना है तो वर्क एक्स के साथ जाना चाहिए, फ्रेशर्स के साथ जाना चाहिए. उनको लाइक काफी एक वो बन गया कि वर्क एक्स के बाद बिना लाइक MBA का मतलब नहीं है. बट ऑनेस्टली उस केस कॉम्पिटिशन में इफ यू सी, मैं फार्मा बैकग्राउंड से आया था, मैं कंसल्टिंग में फार्मा करता था, तो आई कुड ब्रिंग माई आइडियाज इन दैट कॉम्पिटिशन. But then when I saw you putting out your ideas as well, obviously you are coming, do not have the pharma background, do not have any work experience as well. But definitely it was very useful, the ideas that you had put, especially the recommendation part, जित innovative recommendation सोच पा रहे थे. I think मैं fixated था कि यार यही होता है फार्मा में, ये इसी तरीके के promotions चलते हैं, इसी तरीके की चीज़ें होती हैं. So I could bring in that aspect, but you could bring in those recommendations as well, जो काफ़ी innovative थे. And I think finally वो जो interest हुए, like the judges, they were very interested in those topics कि अच्छा ये innovation तो हमने सोचा नहीं होगा. Probably they also wouldn't have. No, I think it's a combination of the two. Like without the proper pharma context, it's just hard to मतलब throw any idea, right? However, once someone like you has put in the whole pharma context, spelled out gaps and possibilities, somebody else can मतलब throw in some twist in it, or like right. Draw from some very naive inspiration and put some innovative ideas on there, and then matlab all of that combines together to give something very nice, right? Exactly. And that's for the audience. Somebody who's completely like a full-time industry veteran may not want to or be open to like very radical changes. However, somebody like a fresher would actually think everything radical, मतलब. Exactly. इसलिए मैं ऑडियंस को बोलता हूँ कि काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार फ्रेशर हूँ मैं, क्या MBA करना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस के बाद जाना चाहिए. बट if you are a great example, because McKinsey, probably one of the most sought after job after even IIM Ahmedabad, you made it there academically as well, top 20, top 10 ऐसे तेरा रैंक था. I think top 5 में था during the first year as well, जब exchange का वो list निकलता है, you are choosing the colleges. Academically you're doing well, placement wise you're doing well, and you are a fresher, complete case competition जीत रहा है. So it's not that only work experience वाले जाके MBA में अच्छा कर पाते हैं, it's freshers भी अच्छा करते हैं. And there's a complete diverse group रहता है एक MBA institution में. Freshers add their value in the class as well. So definitely I believe MBA both work experience and freshers के लिए value add करता है. 100%. I think when you put it like that, it makes me feel कि हाँ शायद अच्छा ही किया, but कहीं I think वो हमेशा उस पर्सपेक्टिव में होता है कि when you ask the fresher MBAs, right, in hindsight मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि शायद वर्केक्स लेके किया होता तो और बेटर होता क्या, right? But it's always that sort of case, I think कि grass is greener on the other side probably. So इसीलिए I think people get those opinions. But like you said, it's very similarly, I have seen like both sorts of people thrive inside B schools. Right, exactly. काफ़ी लोगों को लगता है यार फ्रेशर्स को शायद इतना अच्छे से पढ़ नहीं पाते B स्कूल में, शायद ग्रास्प नहीं कर पाते कॉन्सेप्ट. बट ऐसा नहीं था. इतने सारे फ्रेशर फ्रेंड्स थे यार, वो हम लोग को पढ़ा रहे हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है. सो डेफिनेटली वो नहीं होता. एंड आई थिंक कहीं वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट भी है कि अच्छा हार्वर्ड के लिए यू नीड 4-5 years ऑफ प्रिपरेशन. तो जब मैं एनालाइज कर रहा था, मतलब उनको ये नहीं समझ में आ रही इंडियन मार्केट एंड वेस्टर्न मार्केट थोड़ा डिफरेंट है. True.
जो जॉब मिलता है आफ्टर प्रॉब्ली और गोइंग फ्रॉम हार्वर्ड, यस, वो लेवल भी डिफरेंट रहता है. प्रॉब्ली समवन फ्रॉम हार्वर्ड विल गेट हायर्ड एट से कंसल्टेंट लेवल या फिर मैनेजर लेवल के लिए भी आते हैं, बट इंडिया में द सेम मतलब एसोसिएट लेवल और कंसल्टेंट लेवल मैक्सिमम आएंगे, बिकॉज वैसा ही कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज कॉन्टेक्स्ट एज वेल एंड दोज निटिग्रिटीज एज वेल बिफोर यू एवेल्युएट कि वर्क एक्स या फ्रेशर किसको जाना चाहिए, एवरीथिंग. एंड इस टॉपिक पे है ना, इस एक और चीज़ बोल देते हैं कि anyone who is going to make it to any MBA institution, how can they make the best out of their life? And इसको break down करते हैं, like academics में एक break down करते हैं, extra curriculars में and placement wise as well, कि how can someone make the best out of their life? Academics, extra curriculars and obviously placement. In the time you can cover the profile part as well, right? कि profile कैसे वो होगा. Okay, so let me cover then first academics. How can you do like the best? I think in terms of academics, like I think we covered some of it, is peer-to-peer learning, I think is one of the biggest assets that people should utilize, right? Even if your B school does not have like a formal system of, people teaching each other, you can always rely on your peers. And of course, all of the B schools are today getting such a diverse pool of people ki you should always connect with others and sit together and study. I think that is like the big mantra on, how do you do better on academics. I think more than what you learn in class or what you read even, you would like learn massively more by sitting with friends and trying to figure out things. Right. So I think usse it's a dual benefit. One is you actually connect better with people. And I think doing that case competition and studying together while you were teaching all of those Excel mathematics, I think that's when you connected with so many people. And without that, matlab, probably would not be friends as much as we are today. Exactly. So I think academically that is one big part. In terms of extracurriculars, I think extracurriculars is one aspect where people should look at as a, blowing the steam off kind of area, and you should try to do what you like. You play squash, you do like swimming, you play frisbee. I think is a big sport in Ahmedabad specifically, and but of course you can do a lot of other stuff. You can do dance, drama, all of these things. And what it actually helps is, again, the third part, like you said, the whole profile building in the placement process, because especially consulting firms, they don't just look at how you are doing academically. They want like a full, well-rounded profile. And very famously, they say you have like 4 parts to your CV and you need like 2 to 3 spikes in it. And which is where I think all of the extracurriculars that you do will carry on. And again, extracurriculars is also a major medium on how you make friends and how you develop those deep connections with your peers in B school, which is very important. And I think partly we sort of missed out some of it because of the second year COVID. But in some aspect, we did make up for it with the whole online thing. And absolutely. And I think because it was such a unique time, also that we connected more on very different topics. Absolutely. And I think काफी different connections ही बने. Otherwise dorm connections ज़्यादा थे. Exactly. I think and जब COVID हुआ, online पे the person you are talking to, groups भी different बनने लगे, and suddenly we also connected. I think जो case competition हमने किया completely online किया. Otherwise we would have been on the campus and probably क्या पता we would not have run into each other. Probably dorm mates होते के साथ करते वो. So definitely. So thank you, Anirudh, for doing this, for taking out time. I know you have been running around like in your business as well. There are multiple things you're juggling with. But thank you for taking out this time. Audience, I'm pretty sure they would get a lot of insights on first, obviously, CAT preparation, about consulting life, about life at IIM, IIT, and a lot of career insights. I think this is the kind of information a lot of students would be inspired from. So thank you for taking out this time. Thank you for having me. I'm glad if I could be of any help. And thank you so much.